जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Shtotra Sata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Shri Ananta Padmanabha Swami Ki Jai Shri Tiruvananthapuram Dham Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Hare Krishna. Can we have? There is empty space. There is empty space behind you. There is no chatai. So people for sitting, people can have chatai. You know, we have no chatais. It is blank. You see the floor there. So we can. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Aschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundi Karanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patita Pro Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरकेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे There is gap at the back now. No? There are chairs to fill up that. Chairs are there. Enough chairs are there. At the back, is there a gap? Is there a gap at the back? So we have kept just for the translation purpose we have kept it. Because Keshav Kishore Prabhu is going to translate them in English. So for that purpose, is that fine, Mother? Or anything? Yeah, some can come here also. They can sit in case. No. Haribol. In case there's shortage, they can come here. So you can. Some people, devotees, can sit here also. If हरे कृष्णा, आप में से कितने भक्त आज सुबह अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर नहीं जा पाए? तो कब अवश्य कल सुबह जाने का प्रयास कीजिए। तो अच्छे दर्शन हो गए आप सबको। और यहाँ की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर बहुत विशेष है। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ऊंचे गोपुरम इत्यादि की वास्तुकला मिलेगी। यहाँ पे अलग प्रकार का वास्तुकला है, वो भी बहुत अच्छी है, दिखने में आकर्षक है। और मंदिर में अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आसपास भी और छोटे छोटे मंदिर थे, उनका दर्शन भी शायद आप सबने किया होगा। एको आ रही है क्या? साउंड एको something is not right with the sound. Sound ठीक? Okay. आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे महाराज कुलशेखर आलवार की। उन्हें कुलशेखर वर्मन भी कहते हैं। He keeps on changing it once it is set. Yes, don't change. आप change मत कीजिए उसको. It is not right.
आप सब सुन पा रहे हैं ठीक से? नो एको? आप सुन रहे हैं ठीक से? ओके। तो महाराज कुलशेखर आलवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में अनंत पद्मनाभ स्वामी की सेवा में। उन्हीं के कारण वैष्णव धर्म संपूर्ण तमिलकम जो प्रांत है दक्षिण भारत में फैल गया। और ये कब की बात है? लगभग सन 800 से 820 की बात है। तो कितने साल हो गए अभी? 1200-1300 साल हो गए। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रथा कितनी प्राचीन है। महाराज कुलशेखर का एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, तब से एक प्रकार की विरक्ति, एक वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हुआ, जिसके कारण राज कारोबार में, राज्य के मामलों में, अपने ऐश्वर्य आदि के संबंध में उनके हृदय में कोई रुचि नहीं रही और बहुत ही तीव्र उत्कंठा उनके मन में रहा करती थी कि कब मैं सारा समय भगवान की सेवा के लिए दे पाऊंगा। हमारे कई गृहस्थ भक्त भी कभी कभी ऐसे ही बात करते हैं। उनके मन में भी ये इच्छा रहती है कि हम संसार में लगे हुए हैं, तो कब समय आएगा जब हम ये नौकरी व्यापार सब छोड़ के केवल भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, 24 घंटे सेवा करेंगे भगवान की। तो एक प्रकार से अच्छी इच्छा है, परंतु ये निर्णय बहुत समझदारी से लेना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम गृहस्थ भक्तों की आर्थिक परिस्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने नौकरी या व्यवसाय को छोड़ सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ भक्त के लिए। दूसरी बात, यदि आर्थिक परिस्थिति हो भी वैसे, फिर भी जो समय हमें मिल जाएगा नौकरी और व्यवसाय न करने से, उसमें हम क्या करेंगे? यूं ही तो नहीं बैठ सकते। तो क्या हमारे पास पर्याप्त सेवा है? उतनी रुचि हमारे अंदर है कि हम साधन बढ़ाएं, अध्ययन करें, जप कीर्तन आदि करें, सारा समय हमारा सेवा में बिताएं? तो क्या हमारे लिए ऐसी सेवा उपलब्ध है? क्या हमारी आध्यात्मिक तैयारी इतनी है? और साथ साथ क्या हमारे परिवार के सदस्य भी साथ देंगे इसमें? तो ये सारे प्रश्न हैं। महाराज कुलशेखर की तुलना में यहाँ पर हमारी जिम्मेदारियां कितनी हैं? वो तो राजा थे और कोई साधारण राजा नहीं थे, राज ऋषि थे, लोकप्रिय राजा थे। उनका प्रशासन इतना सुंदर था, परिपूर्ण था कि राम राज्य कहलाता था। तो इस समय जब महाराज कुलशेखर के मन में ऐसे वैराग्य होने लगी, तो स्वाभाविक है कि उनके मंत्री बहुत चिंतित होने लगे कि हमारे राजा को क्या हो रहा है। ये लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, विविध दिव्य देशम में जाने की इच्छा को व्यक्त करते और श्री वैष्णवों को साथ में लेकर वो बैठते, उनसे
रामायण, महाभारत, पुराण आदि से ज्ञान प्राप्त करते। जैसे जैसे इनका संग बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। बहुत ही निष्ठावान, श्रद्धावान भक्त बन गए वो। भाव की अवस्था तक निश्चित पहुंचे। उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र की रचना की। वहाँ पे रोज अपने दैनिक पठन के लिए उन्होंने एक साधना तैयार की थी, जिसमें एक भाग था कि वो रामायण का पठन करें रोज। तो एक विद्वान आते थे और रामायण का पठन करते थे और वो बैठ के सुनते थे। कभी चर्चाएं भी होती थीं। तो जब रामायण के पठन के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी, कोई विशेष लीला होती थी, तो उसी दिन राजा कुलशेखर सारे राज्य में एक उत्सव मनाते उस विषय के, उस लीला के संबंध में। तो मान लीजिए प्रसंग ये है कि अभी राजकुमार घोषित किए जाने का समाचार फैल गया है। दशरथ महाराज ने तय कर लिया कि मुझे श्री राम को ही राजकुमार, युवराज घोषित करना है। तो बहुत खुशखबरी है। तो सारे राज्य में एक उत्सव मनाया जाएगा कि चलो प्रभु रामचंद्र युवराज कह के घोषित किए जाने वाले हैं। तो सारी प्रजा उसमें भाग लेती। उनके महल के अंदर एक मंदिर था, इसमें भगवान श्री राम की मूर्ति थी, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्ति थी। तो बाहर उत्सव मूर्ति ले जाए जाते थे और परिक्रमा में चलते थे पालकी के ऊपर। ऐसे प्रतिदिन उत्सव होता था। जो विषय था उसके ऊपर एक उत्सव मनाया जाता था। बस उनके लिए कोई बहाना चाहिए था कि कोई लीला प्राप्त हो के बारे में सुने कि उत्सव मनाना शुरू कर दिया। और कोई छोटे मोटे उत्सव नहीं। जब राजा कोई उत्सव मनाता है जो ऐश्वर्यशाली हो, तो कितने ठाठ से, कितने ऐश्वर्य से ऐसे उत्सव मनाए गए होंगे, हम बस कल्पना मात्र कर सकते हैं। और इस तरह से समय बीतता गया। और इतना ही नहीं, उत्सव के अंत में जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित रहते थे, यहाँ तक कि जो अतिथि बाहर से आते थे, उनके लिए भी पेट भर के प्रसाद का वितरण होता था प्रतिदिन। तो ऐसे समय बीतता गया। एक बार उनके दैनिक रामायण के पठन में प्रसंग ये आया कि श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता माता के साथ पंचवटी के पास दंडकारण्य में पंचवटी में पहुंचे। वहां पर शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, वो आई। बहुत कुरूप राक्षसी थी। जब शूर्पणखा ने श्री रामचंद्र को देखा तो उनके सौंदर्य को देखकर बहुत आकर्षित हो गई और सीधे वो श्री राम के पास गई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो श्री राम ने मधुरता से उत्तर दिया। मधुरा भाषी हैं श्री राम। उन्होंने कहा, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है। यद्यपि क्षत्रियों के लिए इस बात की अनुमति थी कि वो एक से अधिक पत्नी या रानी रख सकते थे, परंतु श्री राम ने एक पत्नी व्रत स्वीकार कर लिया था। तो श्री राम ने कहा, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप मेरे छोटे भाई के पास जा सकते हैं, लक्ष्मण। ये बहुत ही योग्य व्यक्ति है विवाह के लिए। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। तो लक्ष्मण ने कहा कि देखिए, आप किसी दास या गुलाम से विवाह करना चाहती हैं। जब शूर्पणखा इनके सामने आई, श्री राम और लक्ष्मण के सामने, तो उसने अपना वेश बदल दिया
एक बहुत ही सुंदर तरुणी का रूप धारण करके वो श्री राम और लक्ष्मण के सामने आई। तो श्री लक्ष्मण जी ने भी थोड़ी मजाक में कह दिया कि आप तो इतनी सुंदर हैं, आपको कोई योग्य वर चाहिए। मैं आपके लिए योग्य वर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो केवल एक दास हूँ, गुलाम हूँ। मेरे स्वामी श्री राम के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, जैसे उनका आदेश होता है वैसे मैं करता हूँ। तो शूर्पणखा को क्रोध आया, तो शूर्पणखा ने आक्रमणात्मक भाव से सीता देवी की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। तो लक्ष्मण ने जब देखा कि ये बड़े खतरे की बात है, तो लक्ष्मण ने अपने तलवार को उठाई और शूर्पणखा के नाक को काट दिया। शूर्पणखा भागती हुई गई अपने भाई खर के पास। खर और दूषण, ये दो भाई, ये शूर्पणखा के भी संबंधी थे। तो वहाँ पंचवटी में जनस्थान नाम का एक स्थान है। तो ये खर और दूषण वहाँ पे रहते थे अपने राक्षस मित्रों के साथ में। तो शूर्पणखा ने जाके खर से कहा कि ऐसे हुआ है। तो खर ने 14 राक्षसों को भेजा। तो 14 राक्षसों का वध बड़े आसानी से श्री रामचंद्र ने कर दिया। फिर जब खर को पता चला कि 14 राक्षस आसानी से खत्म हो गए श्री राम के हाथों, तो खर ने अपने 14,000 राक्षसों को सामने भेज दिया। स्वयं खर भी आया और उसके भाई दूषण भी साथ में आया। तो जैसे ही श्री राम ने देखा कि खर, दूषण और 14,000 राक्षस अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप सीता को लेके जाओ एक सुरक्षित स्थान में और वहाँ से हिलना नहीं, केवल उनकी रक्षा करना, मैं इनसे निपटा लूँगा। तो लक्ष्मण ले गए सीता देवी को एक गुफे में। उनसे कहा कि आप गुफे के अंदर रहिए, मैं गुफे के बाहर खड़ा हूँ आपकी रक्षा के लिए, आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उधर दूसरी जगह श्री राम अकेले खड़े रहे वीर रस का आस्वादन करने के लिए। और जैसे 14,000 ये राक्षस आए, तो लगभग 1 घंटे 12 मिनट में श्री रामचंद्र ने इन 14,000 राक्षसों का वध कर दिया अकेले। तो प्रसंग ये चल रहा था। जब ये वाक्य आया कि हमारे नायक अकेले वहां खड़े हैं, 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो जैसे ही राजा कुलशेखर ने ये एक वाक्य सुना कि हमारे श्री राम अकेले युद्ध कर रहे हैं, अकेले खड़े हैं, तो तुरंत उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न हो गया। और वो भाव उत्पन्न हो गया तो उनकी क्या दशा हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे अभी। परंतु इसके पहले 2 शब्द इस बारे में कहना उचित रहेगा कि महाराज कुलशेखर का भाव कैसे होता था जब वो हरि कथा सुनते थे। जब हम लोग कथा सुनते हैं, कभी ध्यान से, कभी पढ़ते हैं, पठन करते हैं शास्त्रों का, कभी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें पढ़ना है। तो ये एक दैनिक साधना है। भले हमें उस समय ठीक लगे, अच्छा लगे, न लगे, हमें बताया गया है ना, चलो करना चाहिए, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि हमें प्रवचन देना है, कुछ पढ़ना चाहिए जाने के पहले, तो प्रवचन के पहले कुछ पढ़ के जाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि यदि हम कोई पुण्य मनोरंजन चाहते हैं, या हम कोई पुण्य व्यक्ति हैं, हमने सोचा कि रामायण, महाभारत, भागवत पढ़ने से हमें कुछ भौतिक सुख प्राप्त होगा, तो हम पढ़ लेते हैं। तो खैर, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं।
परंतु जब राजा कुलशेखर भगवान की कथा सुनते, जब शास्त्रों का पठन होता उनके सामने, तो वो पूरी तरह से उस पठन में, उस कथा में मग्न हो जाते, उसमें पूरी तरह से प्रविष्ट हो जाते, और उस कथा में जो भी प्रसंग चल रहा होता, उस प्रसंग के, मान लीजिए वो भी एक अंदर कोई व्यक्ति थे, भूमिका वो भी निभा देते थे, पूरे बह जाते थे उस भाव में। देखिए, साधारण बाहर की दुनिया में भी जब लोग कोई सिनेमा देखने जाते हैं, तो जब कोई बहुत दुखद घटना होती है सिनेमा में, तो कई लोग रोने लगते हैं वहाँ देख के। उनको पता है कि ये केवल नाटक है, ये कोई सिनेमा है, सच में ऐसा नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, परंतु वो इतने बह जाते हैं उस सिनेमा के वर्णन में, और आगे जो देख रहे हैं कोई रो रहे हैं तो उनके साथ साथ ये भी रोने लग जाते हैं। कभी जो नायक है वो दुष्ट व्यक्ति के साथ युद्ध करता है और प्रहार होता है, झगड़ा होता है, फिर नायक दुष्ट व्यक्ति को मार डालता है, तो सभी लोग खुश होकर जय जयकार करते हैं। तो इतने बह जाते हैं किस चीज़ में? एक साधारण भौतिक कथा में, जो कि लोगों को पता है कि झूठ है, ये सत्य नहीं है, ये काल्पनिक कोई कहानी है, ये जो वो लोग दिखा रहे हैं। परंतु भगवान की कथा कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं, दंत कथाएं नहीं है। ये तो ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हुई हैं। और दूसरी बात, यदि साधारण भौतिक कहानियों में इतनी ताकत है कि जो व्यक्ति उसको ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है, वो इतना बह जाता है, तो भगवान की कथाओं में कितनी शक्ति होगी। भगवान की कथा तो भगवान से अभिन्न है। हाँ, ये जो सिनेमा की कथाएं होती हैं, इनमें भी शक्ति होती है, क्योंकि वो माया की शक्ति है, और क्योंकि माया भगवान की दासी हैं, तो माया की शक्ति भी अपार है। फिर भी यहाँ हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि यदि साधारण कथाओं में इतनी शक्ति होगी, तो भगवत कथा में कितनी और शक्ति होगी। और यदि साधारण कथा सुनते सुनते व्यक्ति भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपने मन लगाकर भगवान की कथा में मग्न हो जाए, श्रवण पुटेषु संभृतम, कानों को भर भर के कथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पूरी तरह से हम जब मग्न हो जाते हैं भगवान की कथा में, तो हमें समय नहीं, कि समय कैसे बीत रहा है पता नहीं चलता है। इसकी पुष्टि तो अनेक शास्त्र में बार बार दिखाई पड़ती है। श्रीमद् भागवतम में तो कितनी बार ऐसे होता है। राजा परीक्षित भी स्वयं कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी से कई बार। खैर, हम इस विषय में और आगे विस्तार में नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, आगे कुलशेखर महाराज की चर्चा करनी है। तो खैर, महाराज कुलशेखर इतने मग्न हो जाते थे कि उनके लिए जो हमारे जागृत अवस्था की जो दुनिया है और जो लीला की दुनिया है, उनमें अंतर नहीं रह जाता। जब हम कोई कथा सुनते हैं, भगवत कथा, भले हम कितने भी मग्न क्यों न हो जाएं, परंतु ये एक चेतना हमारी रहती है कि मैं कौन हूँ, ये मेरा शरीर है, कुछ चींटी काट रही है, मच्छर काट रहा है, तो हमें लगता है मैं हूँ, मेरा शरीर है। तो जागृत अवस्था की चेतना भी रहती है। परंतु राजा कुलशेखर जैसे भक्त जब वो भगवत कथा में प्रविष्ट होते हैं, परीक्षित महाराज जैसे भक्त भी, तो उस समय पूरी तरह से जो जागृत अवस्था की दुनिया है
उससे परे होकर एक आध्यात्मिक दुनिया में वो प्रवेश करते हैं। और यहाँ रहते हुए भी उनको पता नहीं चलता है कि बाहर यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सत्य है, क्या नहीं है। वास्तव में हरि कथा ही सत्य है और ये जागृत अवस्था की दुनिया ही मिथ्या है। किस दृष्टि से मिथ्या है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्षण भंगुर है। किसी भी क्षण हर चीज भंग होने वाली है। तो महाराज कुलशेखर ऐसे प्रविष्ट हो जाते और वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनके बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। और कथा की दुनिया को ही सर्वस्व मानते थे और वो भी सत्य है। तो जब वो ऐसे कथा सुनते थे, ऐसे मग्न हो जाते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। तो इस बार जब ऐसे हुआ और उन्होंने सुना कि श्री राम वहाँ अकेले हैं, तो इतने उन्माद में आ गए, भाव विभोर हो गए कि तुरंत उत्तेजित होकर वह खड़े हो गए। हमारे श्री राम अकेले हैं, अकेले हैं, 14,000 राक्षसों के साथ अकेले युद्ध कर रहे हैं। तो हे प्रिय भ्राता लक्ष्मण, देखो आप तो अकेले वहाँ पे सीता देवी की रक्षा कर रहे हो और उधर श्री राम अकेले लड़ाई कर रहे हैं। तो वो कहने लगे जोर जोर से कि श्री राम के जीवन में कितने खतरे हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। यद्यपि श्री राम के पास चक्र है, गदा है, शंख है, सब कुछ है, उनके आयुध हैं, फिर भी हम उनके भक्त हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाके श्री राम के साथ में राक्षसों के विरोध में युद्ध करें। तो वहां पर उठे, तो जोर से अपने आसन से उठ के अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा कि सेना को तैयार करो, अस्त्र शस्त्र धारण करो। स्वयं महाराज कुलशेखर ने सारे अपने कवच ववच शरीर सब पहन लिए, अस्त्र धनुष बाण सब तैयार करके कहने लगे हमें अभी निकलना है जनस्थान के लिए, पंचवटी के लिए। तो निकल पड़े वहां से। उधर मंत्री देखते रह गए। मंत्री सोच रहे हैं ये प्रतिदिन इस प्रकार के कार्य होते थे, तो मंत्रियों को पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो वो कहने लगे, अरे हमारे राजा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, अब किस तरह से उनके मन को शांत किया जा सकता है, कैसे उनको सांत्वना दी जा सकती है, कैसे उनके असंभव धर्म युद्धों से और क्रुद्ध संकल्पों से उनको हटाया जा सकता है। इस तरह से वो यदि करेंगे तो क्या होगा। फिर आपस में विचार विमर्श करने लगे और एक उपाय उनके मन में आया। तो राजा तो निकल पड़े थे अपनी सेना को लेकर, बड़े साथ में इतने सैकड़ों सैनिक उनके साथ में थे। सब सैनिक सोच रहे हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन शत्रु है, परंतु राजा ने आदेश दिया है ना, तो सबको चलना है। कहाँ राक्षसों का वध करना है, श्री राम का साथ देना है। तो सब सैनिक चल पड़े। और तो मंत्रियों ने क्या किया, उन्होंने थोड़े और सैनिकों को बुलाया और कहा तुम जल्दी से घोड़े पे बैठकर आगे जाओ, जनस्थान पंचवटी की ओर जाओ, और जब आगे जाओगे फिर घूम के वापस आना। और घूम के आओगे तो रास्ते में राजा मिलेंगे, राजा अपनी सेना को लेकर आ रहे होंगे। तो राजा को देखते ही आपको बड़े प्रसन्नता से घोषणा करनी है कि श्री राम का विजय हुआ, श्री राम का विजय हुआ, राक्षसों का वध हो गया। आपको ऐसे बोलना है। तो उन सैनिकों ने कहा ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। और फिर जब आगे गए, घूम के आ गए वापस, और आते आते जैसे देखा कि राजा कुलशेखर बड़े अपने युद्ध के भाव में हुंकार करते हुए आ रहे हैं, राम का जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। तो ये सब आए, राजा के सामने प्रणाम किया कि हे महाराज,
आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि श्री राम ने असुरों राक्षसों का वध कर दिया है, हम उसी स्थान से आ रहे हैं, इसलिए अभी आपको यहाँ पर और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये खबर सुनी राजा कुलशेखर ने तो बहुत ही आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और फिर उन सैनिकों के साथ अपनी सेना को भी साथ में लेकर वापस यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में चले आए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई घटना ऐसे हो रही हो तो मंत्रियों का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि ये मंत्री गण जो थे ये भक्त नहीं थे, और उनको पता नहीं चलता था कि राजा इस प्रकार से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। उनको तो लगता था कि ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये क्या पागलपन है, ऐसे दिन रात भगवान के पीछे ऐसे जा रहे हैं। उस समय जब वो युद्ध के लिए युद्ध करने के लिए जा रहे थे, मंत्रियों ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि राजन, ये जो कथा आपने सुनी वो त्रेता युग में हुई थी, अब नहीं हो रही है, अब कलयुग प्रारंभ हो चुका है, ये त्रेता युग की कहानी है। पर महाराज कुलशेखर मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अभी दूसरी दुनिया में रह रहे थे, ये मंत्री लोगों की दुनिया में नहीं रह रहे थे, देहात्म भाव में वो नहीं थे, वो रामायण के स्तर में थे, रामलीला में पूरी तरह से मग्न थे। तो खैर ऐसे समय बीत गया। तो फिर मंत्रियों ने विचार विमर्श किया, और जो विद्वान संत आदि उनके साथ आते थे प्रतिदिन कोई रामायण की कथा करने के लिए, कोई अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि रामायण का पठन जब होगा केवल उन्हीं प्रसंगों का पठन होगा जिसमें कि श्री राम सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, सुखमय लीलाओं का वर्णन ही होगा। इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन नहीं होगा जो कि जिसमें राम को कोई कष्ट पहुंच रहा हो या सीता देवी को कोई कष्ट पहुंच रहा, इस तरह के प्रसंग नहीं पढ़ने चाहिए। तो ऐसे अनेक दिन हुआ। एक बार जो विद्वान थे, जो भक्त थे, जो रामायण का पठन राजा कुलशेखर के लिए किया करते थे, उन्हें अचानक किसी काम से दूसरी जगह जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। अब बेटे को यह पता नहीं था कि राजा भाव विभोर किस प्रकार से हो जाते हैं। इस बेटे को पता नहीं था कि भेद करना चाहिए, किस प्रकार की लीलाएं सुनानी चाहिए, किस प्रकार की लीलाएं नहीं सुनानी चाहिए। तो वो ऐसे ही आए, बस अपने भाव में वो पठन करने लगे, और करते 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 वो प्रसंग आया जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अब सीता का अपहरण कर लिया तो राजा कुलशेखर आग बबूले हो गए, और उन्माद में वो फिर से उठे और जोर से पुकारने लगे, माता सीता की रक्षा करने के लिए हमें जाना चाहिए, मैं तुरंत निकलूंगा यहाँ से, मुझे समुद्र पार करके लंका पहुंचना है, लंका को भस्म करना है, और रावण और उनके साथियों को मार डालना है। साथ साथ सीता माता जो अभी दुख के कारण और श्री राम के विरह के कारण आंसू बहा रही हैं, उनकी रक्षा करनी है और उनको बचा के वापस समुद्र पार करके श्री राम के पास ले आना है। तो फिर से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए और सेनापतियों को, सैनिकों को बुलाया, चलो लंका चलो मेरे साथ। तो अब निकल पड़े। और ऐसा नहीं है कि बहुत तैयारी करने के लिए, वो जब कोई युद्ध करते हैं ना, तो युद्ध करने के पहले बहुत योजना बनाते हैं ना, हम कैसे आक्रमण करेंगे, किस दिशा से आएंगे, क्या होंगे। ये तो सीधे बस चल पड़े, अपने आसन से उठे, अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, सैनिक तैयार, चलो आगे।
समुद्र का तट तो यहाँ निकट ही है, तो शायद इधर भी गए होंगे, थोड़े दक्षिण भाग में गए होंगे। तो फिर आगे सीधे समुद्र में प्रवेश कर दिया उन्होंने। और उधर सारे मंत्रीगण इतने अवाक हो गए, हक्का बक्का रह गए, वो हताश होकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। उनके मन में कोई बात आई नहीं, सूझा नहीं उनको कि कैसे राजा को समझाया जाए, कि कौन से शब्दों से उनको रोका जाए, कि हम क्या कहें उनसे जिनसे कि वो इस तरह का कार्य न करें। बिना कोई विचार के कि समुद्र के अंदर यदि हम प्रवेश करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे विचार किए बिना राजा अंदर चले गए। तो निस्सहाय होकर सारे मंत्री जो हैं वो देखते रह गए, जैसे मानो कि वो कोई मूक कोई प्रतिमा हो, खड़े हैं मुंह खोल के, ऐसे बस खड़े थे। उनको कोई बात सूझी नहीं कि कैसे राजा को समझाना चाहिए, केवल देखते रह गए। उधर महाराज कुलशेखर का जोश कम नहीं हुआ, समुद्र के अंदर चले गए। पानी पहले कमर तक थी, फिर आगे छाती तक आई, फिर गर्दन तक पानी है, फिर भी राजा चले जा रहे हैं श्री राम का जय जयकार करते हुए कि ललकारते हुए रावण मैं आ रहा हूं। और उधर बेचारे सैनिक के पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अब अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, परिस्थिति आपातकालीन परिस्थिति हो गई थी और बहुत गंभीर और विकट परिस्थिति हो गई थी। तो ऐसे परिस्थिति में जब और कोई कुछ नहीं कर सकता है तो बस अब केवल भगवान ही कोई उपाय निकाल सकते थे। तो उधर भगवान ने देखा कि श्री राम ने देखी कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे भक्त समुद्र पार करके आना चाहते हैं, ये तो संभव नहीं है तैर के जाना यहाँ से लंका। तो श्री राम ने सोचा कि और कोई उपाय नहीं है, मैंने तो वचन दिया है कि मैं मेरे भक्त का रक्षक हूँ, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होगा, तो मुझे जाके इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो श्री राम लंका की दिशा से सीता देवी को साथ में लेकर समुद्र के जल के ऊपर चलते 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 आए। यहाँ से कुलशेखर लंका की ओर जा रहे हैं समुद्र के भीतर। दूसरी ओर से वो देखने लगे, जब पानी गर्दन तक, यहाँ तक हनवटी तक पहुँच गई थी, तब उन्होंने देखा कि सामने से श्री राम सीता देवी के साथ जल के ऊपर चल के आ रहे हैं। और फिर श्री राम ने राजा कुलशेखर से कहा कि हे वत्स, हे मेरे प्रिय श्रद्धालु भक्त, मैं अभी विजयी होकर युद्ध भूमि से लौट रहा हूँ। हमारे जो शत्रु हैं उनका विनाश हो गया है, रावण और उसकी सेना का विध्वंस मैंने कर लिया है और मैंने सीता देवी को बचा लिया है और आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अभी लंका के लिए आगे मत जाइए, अब अपने स्थान में, अपने शहर में आप लौट के जाइए। और मैं वही भगवान हूँ जो कि अपने भक्तों को तार देता हूँ भवसागर के ऊपर के पार करता हूँ। तो जिस प्रकार से मैं जीवों को भवसागर के पार करके उनको मेरे धाम वैकुंठ जगत में ले जाता हूँ, तो आओ मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे नगरी के द्वार पे पहुंचा देता हूँ। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि वो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करेंगे, भक्तों को तार देंगे। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जो व्यक्ति सदैव, या जो व्यक्तियां, जो मेरे भक्त सदैव
अपना सर्वस्व मेरे लिए अर्पण करते हैं, उनके कर्म, उनकी चेतना, उनकी वाचा, सब कुछ मेरे ऊपर केंद्रित करते हैं, तो उनके लिए तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, तो ऐसे मृत्यु संसार के सागर को पार करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ, मैं समुद्धरता बन जाता हूँ। न चिरामि, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, शीघ्र ही मैं पहुँच जाता हूँ। मैया वेशित चेतसाम, तो जिनका चित्त मुझ में समाया हुआ है, जिनके चित्त मुझ में प्रविष्ट हो चुका है, ऐसे मेरे भक्तों के लिए मैं शीघ्र ही आके उनको भवसागर से पार करा देता हूँ। तो भगवान श्री राम ने फिर अपनी दिव्य शक्ति से महाराज कुलशेखर को उठाया और उठाकर सीधे उनके राज्य के द्वार के सामने रख दिया और वहाँ से वो निकल गए और फिर अचानक अदृश्य हो गए। उधर राजा कुलशेखर तो बहुत प्रसन्न थे कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया। उद्देश्य क्या था कि सीता देवी को बचाना है, उनकी रक्षा करनी है, और स्वयं श्री राम ने घोषणा की थी कि ये हो चुका है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उत्सव मनाया। तो बड़ा उत्सव हुआ वहां पे, सारे शहर में, सारे राज्य में उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उत्सव का विषय क्या था, कारण क्या था कि सीता देवी की रक्षा हुई। श्री राम ने सीता देवी को बचा लिया और वापस यहाँ पर ले आए। तो ऐसे दिन बीतते थे राजा कुलशेखर के। यदि हम वहाँ उस राज्य में उस समय रहते, यहाँ की प्रजा होते, तो अपनी आंखों से ये सब हम देख पाते। तो अभी सारे मंत्री गण जो है वो सोच रहे थे क्या किया जाए। तो फिर इस बहुत ही असाधारण और अद्भुत घटना के बाद सारे मंत्री विचार विमर्श करने लगे। वो कहने लगे कि हमारे जो राजा हैं, देखिए वो राजा से बहुत प्रेम भी करते थे और इतने अच्छे राजा थे वो। भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनका प्रशासन बहुत परिपूर्ण था और आध्यात्मिक दृष्टि से तो था ही, और बहुत लोकप्रिय थे, प्रजा बहुत संतुष्ट थी, हर दृष्टि से राज्य समृद्ध और सुखी था। तो ये मंत्रीगण सोच रहे थे कि राजा का व्यवहार इस तरह से रहा तो आगे चल के क्या होगा, राज्य का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा। तो फिर वो कहने लगे कि हमारे जो प्रिय राजा हैं वो थोड़े बीमार हो चुके हैं, उनको ये भक्ति का रोग लग गया है, और अभी रोग लगने के कारण इसके लिए उपाय क्या है हमें ढूंढ निकालना है। तो क्यों ऐसे हो गए हैं? देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमारे पास कोई लक्षण होते हैं, बुखार है, पेट में दर्द है, सर दर्द जो भी है, तो इन लक्षणों को देखते हैं, फिर जांच करते हैं डॉक्टर, फिर निदान करते हैं। निदान अर्थात डायग्नोसिस, निदान करते कि ठीक है आपकी ये बीमारी है। देखिए, उपचार में सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है निदान, डायग्नोसिस, ये जांच करना, ये ढूंढ निकालना कि बीमारी क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये। उसके बाद आप सही औषध दे पाएंगे ना। यदि आपने यही ठीक से निर्धारित नहीं किया कि बीमारी कौन सी है और किस कारण से बीमारी हुई है, तो सही दवाई कैसे देंगे आप। तो ये मंत्रीगण सब चर्चा कर रहे थे, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, सही निष्कर्ष पर, कि हमारे राजा को भक्ति का रोग हो गया है, भक्ति का पागलपन हो गया है। और इसका कारण क्या है, ये सारे वैष्णव जो आते हैं ना, इनके संग में ये पागल हो गए हैं। तो डायग्नोसिस पूरा हो गया, उनका निदान। यही मूल कारण है कि ये वैष्णवों का संग तो ऐसे करते हैं कि किसी न किसी तरह से
इन वैष्णवों को यदि हमने राजा से दूर कर लिया तो फिर राजा ठीक हो जाएंगे, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर से वो नॉर्मल हो जाएंगे, फिर से सही हो जाएंगे। जब कोई आदमी या व्यक्ति कोई भक्त बन जाता है तो अक्सर उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, सगे संबंधी ऐसे ही कहते हैं, अरे पागल हो गए हो। आप में से अनेकों का अनुभव ऐसे हुआ होगा कि जब आप भक्त बने तो ऐसे कोई बातें कहने वाले लोग आपसे मिले होंगे, अरे ये क्या पागलपन है, ये क्या हो रहा है, ये दिन भर हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हो, ये क्या हो गया है, पागल हो गए हो। ये बहुत पुरानी बात है। देखिए राजा कुलशेखर के साथ भी ऐसे हुआ था। प्रभुपाद जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की थी और तरुण पीढ़ी के लोग उनके भक्त बने थे, तो विशेष करके अमेरिका में और अन्य देशों में भी ये बात फैलाई गई कि यहाँ ये लोग कुछ जादू टोना करके इनके मन को प्रभावित कर रहे हैं, उनको पागल बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस समय एक बैक टू गॉडहेड पत्रिका में एक लेख लिखी जिसका नाम था हु इज क्रेजी। शीर्षक था उस लेख का कि वास्तव में पागल कौन है, क्योंकि दुनिया बोलती है ना कि भक्त लोग पागल हैं, परंतु वास्तव में पागल कौन है। तो ये लेख श्रील प्रभुपाद जी का था, बहुत सुंदर लेख है, आप पढ़िए अवश्य से। वास्तव में जो व्यक्ति सत्य को नहीं मानता है, जो सत्य नहीं जानता है, अपने आप को ही शरीर मानता है, तो वही तो पागल है ना। जब कोई व्यक्ति नशे के प्रभाव में रहता है तो फिर वो अपने आप को कुछ और ही समझता है, तो इसे पागलपन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता तो हम कहते हैं कि ये पागल है। उसी प्रकार से हम जब तक सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं तब तक हम पागल हैं। तो खैर, तो ऐसे वो कहने लगे कि ये वैष्णवों के संग को पाकर ये पागल हो चुके हैं, इसलिए वैष्णवों को ही इनसे दूर रखना चाहिए किसी न किसी तरह से। तो ये कैसे किया जाए? परंतु आगे जब और गहराई में और चर्चा करने लगे, फिर सोचने लगे नहीं, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन राजा की जो लालसा है, उत्कंठा है विभिन्न दिव्य देशों में जाने की, वो तो और तीव्र होती जा रही है। और यदि राजा किसी दिव्य देशम में चले गए, श्रीरंगम या कांचीपुरम इत्यादि, तो लौटेंगे नहीं, वो तो वहीं रह जाएंगे। और यहाँ तो थोड़े बहुत वैष्णव आते जाते हैं, परंतु वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भरे पड़े हैं वैष्णव, और वहाँ तो हालत और खतरनाक है, वहाँ से और भी बड़े बड़े वैष्णव वहाँ पे पड़े हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे वापस। तो फिर अभी क्या करें, कैसे जाएं? तवे से फिर आग में जाने की बात हो गई। तो नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते। और ये जो धाम है, श्रीरंगम है, कांचीपुरम है, वहाँ जिस प्रकार के आध्यात्मिक आकर्षण उपलब्ध हैं, जिस प्रकार का वैष्णव संघ वहाँ है, वहाँ पे भगवान के जो मंदिर हैं सुंदर इत्यादि, इनसे प्रभावित होकर राजा तो वहाँ से लौट के आएंगे नहीं, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर और सोचने लगे मंत्रीगण। फिर सोच के उन्होंने एक उपाय निकाला कि ठीक है, जब भी राजा ऐसे विचार व्यक्त करेंगे, एक संकल्प लेंगे कि आज मुझे जाना है। प्रतिदिन ऐसे होता था, वो कोई संकल्प लेते थे कि आज मुझे श्रीरंगम के लिए निकलना है, और निकल पड़ते। तो मंत्रियों ने क्या किया, उन्होंने ऐसी योजना की कि अलग अलग स्थानों से थोड़े वैष्णवों को तैयार करके रखा। कभी कोई कांचीपुरम का वैष्णव, कभी श्रीरंगम के वैष्णव, कभी तिरुमला के वैष्णव,
और जब भी राजा कुलशेखर ऐसे संकल्प लेते कि मुझे जाना है, निकल पड़ते, ठीक उसी समय वो वैष्णव आ जाते, मंत्रियों द्वारा भेजे जाते। तो वैष्णवों को देखकर फिर वो सोचते, अरे मुझे तो वैष्णवों की सेवा करनी है, वो बहुत प्रसन्न हो जाते। महाराज कुलशेखर वैष्णवों से बहुत प्रेम करते थे। वैष्णवों की सेवा करना उनके लिए अपने प्राण से भी अधिक प्रिय कार्य था। तो जैसे ही उन वैष्णवों को देखते तो फिर अपने श्रीरंगम या कांचीपुरम इत्यादि जाने की बात भूल जाते और सोचते, नहीं नहीं मुझे इनकी सेवा करनी है। फिर 2 4 5 दिन जितने भी दिन वहां वो वैष्णव रहते तो उनकी सेवा में दिन रात मग्न रहते। और फिर जब वो वैष्णव चले जाते और फिर थोड़े दिन बाद इच्छा होती कि दूसरी जगह जाना है तो और कोई दूसरे वैष्णव आ जाते। इस तरह से मंत्रियों ने टाल ली। तो ऐसे चलता गया थोड़े दिन, परंतु देखिए संसार में जो भक्ति के विरुद्ध कोई हम उपाय निकालेंगे ना, तो थोड़े समय के लिए भले वो काम कर भी क्यों न ले, परंतु ये दीर्घकालीन उपाय कदापि नहीं हो सकता है। तो वो ये कि जब अधिक से अधिक संख्या में वैष्णव आने लगे तिरुवनंतपुरम में, तो सारा शहर वैष्णवों से भर गया। जहां देखे वहां वैष्णव, सड़क पे देखिए वैष्णव, फिर आप मंदिर के अंदर देखिए वो तो वैष्णव है ही, जो पूजा अर्चा कर रहे हैं वो तो वैष्णव हैं, राजा के दरबार में वैष्णव भरे हैं, क्योंकि दरबार में राजा उनसे कुछ सुनते थे, कुछ प्रश्न उत्तर होते थे। यहाँ तक कि अपने अंतःपुर में, अपने निवास स्थान में भीतर भी वैष्णवों को अनुमति थी आने के लिए। कोई रोक टोक नहीं होता था वैष्णवों के लिए। जो भी वैष्णव है राजा के महल में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। और जो पहरेदार थे, सैनिक थे, मंत्री थे, कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि राजा का आदेश है कि वैष्णवों को रोकना नहीं चाहिए, जहाँ चाहे उनको जाने देना। तो अब वैष्णवों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब क्या कहा जाए, अब इनको संभालना मुश्किल हो गया। और फिर सारे मंत्रीगण सोचने लगे, हमारे राजा तो शास्त्रों के इस कथन पर विश्वास करते हैं कि एक श्री वैष्णव की सेवा करना ये भगवान की उपासना 60,000 वर्षों तक करने के बराबर है, के समान है। इस बात को मानते हैं हमारे राजा। तब क्या किया जाए? इसलिए हमारा सारा शहर वैष्णवों से भर गया है, यहाँ तक कि राजा के कमरे में भी खुलेआम आते हैं, जाते हैं। तो अब क्या किया जाए, इनको संभालना मुश्किल है। तो फिर और सोचने लगे, कहा कि हाँ, हमें ऐसे कोई षड्यंत्र करना चाहिए जिसके द्वारा इन श्री वैष्णवों के उनके नाम पे कोई कलंक आ जाए। क्योंकि राजा के मन में इन वैष्णवों के प्रति बहुत आदर और सम्मान और श्रद्धा है। तो यदि ऐसे कोई आरोप इन पे लगाया जाए जिसके द्वारा ये साबित किया जा सके कि जो तथाकथित या राजा की दृष्टि में सत्य हैं वो वास्तव में असत्य हैं, तो फिर राजा की श्रद्धा इन वैष्णवों में घटेगी, कम हो जाएगी, और फिर वो वैष्णवों से दूर रहेंगे जब उनको पता चलेगा कि अरे अरे वैष्णवों ने ऐसे सारे कार्य किए हैं। तो इस तरह से राजा को अपने पागलपन से मुक्त किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मंदिर में जो भगवान का एक बहुत मूल्यवान आभूषण था, एक रत्नों की माला थी, रत्नों का हार था, तो वो उन्होंने जानबूझकर उठा लिया। वहाँ व्यवस्थापन करते थे
जो वैष्णव थे, श्री वैष्णव लोग, वहाँ सब अर्चा विग्रह की सेवा करते थे। भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण आदि उनको संभालते थे। तो जानबूझकर मंत्रियों ने एक आभूषण चोरी कर ली और फिर राजा के पास गए और कहा कि ये बहुत मूल्यवान आभूषण भगवान का गायब हो गया है। तो हमें तो लगता है कि इन श्री वैष्णवों ने ही ऐसे किया होगा, क्योंकि यही सब देखभाल करते हैं। इन्हीं के हाथ में चाबी है, जो भी कुछ है यही सब संभालते हैं। तो इन्होंने ही ये सब किया है। हम सब ने चर्चा की है और हम सब एक मत के हैं कि ये वैष्णव ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो राजा कुलशेखर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है। इस तरह के जो वैष्णव होते हैं उनके मन में भी चोरी जैसे कार्यों के विचार भी नहीं आ सकते। कृति में लाने की बात तो दूर रही, परंतु क्योंकि आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो तो चलो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम ऐसे कोई उपाय निकालें जिसके द्वारा ये साबित हो जाए कि ये वैष्णव मासूम है, ये दोषी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक जहरीले कोबरा सांप को लेकर आना, उसे एक पात्र में, एक बर्तन में रख के ले आना। तो सारे मंत्री लोग घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया। तो राजा का आदेश है, पालन तो करना पड़ा। तो एक जहरीले कोबरा जो सांप है बहुत जहरीला, जब कोबरा सांप काटता है तो फिर व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है। तो एक पात्र में लाए सामने। फिर राजा ने कहा, मैं मेरा हाथ इस पात्र के अंदर डाल दूंगा और यदि इस कोबरा सांप ने मेरे हाथ को डस दिया तो वैसे भी मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो हम समझेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, कि ये वैष्णव गलत थे, इन्होंने चोरी की थी। परंतु हाथ जब मैं बाहर निकालूंगा तब ये देखा जाए कि उस कोबरा सांप ने मुझे डसा नहीं है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, कि ये आपका षड्यंत्र है। तो सारे मंत्री क्या कहें, उनका हृदय उनके मुंह में आ गया। अब क्या किया जाए। तो खैर राजा अटल थे अपने संकल्प पे, तो उन्होंने बिना कोई डरे हुए वो हाथ अंदर डाल दिया और उस पात्र से कोबरा सांप बाहर आया। बाहर आके प्रदक्षिणा की राजा की और चला गया और महाराज कुलशेखर के हाथ को कुछ नहीं हुआ। तब ये सारे मंत्रीगण जो थे वो आके वो राजा के सामने आके क्षमा याचना करने लगे। अपनी भूल उन्होंने स्वीकार कर ली और कहा कि वास्तव में हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम बहुत लज्जित हो गए हैं, ये गलती हमारी है। सर झुका के उनके सामने खड़े हो गए, राजा के चरणों में पड़े, क्षमा याचना की। और राजा तो भक्त थे, वैष्णव बहुत ही कृपालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं। तो राजा ने तो क्षमा कर दी और फिर मंत्रियों ने वो जो रत्नों का हार था वो उनके सामने लाके फिर दे दिया। ठीक है, मंत्रियों को जान तो बच गई, वैष्णव भी बदनाम नहीं हुए, राजा की जान भी बच गई। परंतु महाराज कुलशेखर के मन में अब एक घृणा हो गई। ऐसे जो है ये नीच और षड्यंत्रकारी मंत्रियों के साथ मुझे रहना ही नहीं है। इतनी घृणा हो गई कि ऐसे लोगों के बीच में रहना और मुझसे सहा नहीं जा रहा है। वैसे भी संसार मेरे लिए असहनीय हो चुका है और अब यहाँ रहते हुए ये लोग इस प्रकार से षड्यंत्र करेंगे और मेरे प्रिय वैष्णवों के प्रति ऐसे सब करेंगे, तो मुझे यहाँ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो यहाँ
अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं तो इस संसार से, इन मंत्रियों से, इस राज्य से थक गया हूं और मैं यहाँ से अब निकल जाऊंगा। तो उन्होंने अपने पुत्र दृढ़व्रत, उनके पिता का नाम भी दृढ़व्रत था, पुत्र का नाम भी दृढ़व्रत, तो अपने पुत्र दृढ़व्रत के हवाले राज्य कर दिया। राज सिंहासन पर बिठाकर उनको राजा घोषित करके फिर अपनी पुत्री को लेकर वो निकल पड़े, श्रीरंगम चले गए। आज सुबह आपको याद होगा मैंने बताया था कि राजा जब निकल पड़े वानप्रस्थ लेकर तो अपनी पुत्री को साथ में लेकर गए। श्रीरंगम जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्री का विवाह किनसे किया? भगवान श्री रंगनाथ से करा दिया। और ये विवाह हुआ राम नवमी के दिन पर। इसलिए आज भी श्रीरंगम में राम नवमी के तिथि पर, वैसे श्री राम का जन्मदिन तो मनाया ही जाता है, परंतु इस बात को भी, इस लीला को भी मनाया जाता है कि राजा कुलशेखर की पुत्री का विवाह श्री रंगनाथ देव से हुआ। वैसे और एक आलवार थी, आंडाल, उनके पिता पेरी आलवार भी, वो भी एक आलवार थे। 12 आलवारों में से आंडाल एकमात्र महिला थी। और ऐसे बताया जाता है कि आंडाल भी इसी प्रकार से ने संकल्प किया था कि मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी सिवाय भगवान रंगनाथ के। और अंत में जब वो आई पालकी के ऊपर सवार होकर विवाह के लिए, और पालकी से उतरी, गर्भगृह में गई और उसके बाद फिर किसी को दिखाई नहीं पड़ी, फिर आगे गर्भगृह में जाके अदृश्य हो गई। तो खैर ऐसे राजा कुलशेखर के साथ वहाँ हुआ। तो वो श्रीरंगम में रह के सेवा करने लगे, तरह तरह की सेवाएं करते थे। वो भूल गए कि वो राजा थे। वैसे भी उनको राजपद में कोई रुचि नहीं थी, परंतु बहुत दीनहीन अपने आप को समझकर बहुत विनम्रता से वो सेवा करने लगे। इस प्रवचन के प्रारंभ में मैं ये बता रहा था कि कभी कभी हमारे गृहस्थ भक्त भी अपना संसार छोड़कर वो पूरे समय मंदिर की सेवा करना चाहते हैं, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि जब व्यक्ति बाहर की दुनिया में रहता है तो वो देहात्म भाव जो है वो बहुत तीव्र होता है और व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य कर सकता है। यदि किसी का व्यापार है तो अपने व्यापार को जैसा चाहे वैसे संभाल सकता है। नौकरी कर रहा है, एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी में जा सकता है, परंतु जब भगवान की सेवा करने के लिए व्यक्ति आता है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ हूँ। अब यहाँ कोई संसार के पद नहीं काम करते। हम जब वैष्णवों के बीच में रहते हैं तो हम केवल दास दासानुदास हैं। बाहर की दुनिया के में हमारा क्या पद है, क्या है, इसका ये कोई मायने नहीं रखता। तो ये जो एक मानसिक परिवर्तन है, इसको लाना अति आवश्यक है और ये आसान नहीं है लाना, क्योंकि इतने वर्षों तक दुनिया में रह के जब एक प्रभुत्व हमने जमाने का प्रयास किया है, स्वाभाविक तौर से हर एक बद्ध जीव के साथ होता है, और उसके बाद इस प्रभुत्व को त्याग कर दासत्व को स्वीकार करना भक्तों के बीच में, तो ये इतना आसान नहीं होता है। इसलिए ये एक मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी जो है, इसका होना बहुत आवश्यक है। महाराज कुलशेखर के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो भक्ति के इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके थे कि वो पूरी तरह से अपने स्वरूप में स्थित थे। इसलिए श्रीरंग में तरह तरह की सेवाएं वो करते थे। और आप देखेंगे अधिक से अधिक जो 12 आलवार हैं, उनमें से अनेक ऐसे थे जिनकी एकमात्र सेवा हुआ करती थी भगवान के लिए फूल का बगीचा उगाना और भगवान के लिए फूलों की माला तैयार करना, बस। यदि कोई भक्त आज ऐसा करे, हम करेंगे अरे भाई
ये क्या सेवा करते हो, इतनी पढ़ाई की है और तुम केवल फूलों की माला बनाते हो भगवान के लिए। तो कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसे कोई कार्य करना चाहिए जो कि दुनिया में सब लोग देखते रह जाए। परंतु आलवार ऐसे नहीं थे। ये जो साधारण सेवाएं हैं, भगवान के धाम में भी उनको बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये कुलशेखर आलवार भी ऐसी सेवा करते रहे और समय समय पर अन्य दिव्य देशम स्थानों में भी वो जाते थे। कभी कांचीपुरम, कभी तिरुमला, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, ऐसे जाके फिर से लौट के आ जाते थे। और अपने अलग अलग यात्राओं में जब वो जाते थे और श्रीरंगम में रहते हुए भी उनके जो विभिन्न साक्षात्कार हुए भक्ति में, तो इन साक्षात्कारों को उन्होंने काव्यात्मक रूप में तमिल भाषा में व्यक्त किया। जैसे आज सुबह हमने चर्चा की या कल कर रहे थे कि उन्होंने 105 ऐसे तमिल भाषा में पंक्तियां लिखी जिनको पासुरम कहते हैं तमिल भाषा में। और फिर इनका नाम हो गया पेरुमाल तिरुमुड़ी। तो ऐसे मैंने पढ़ा कहीं कि पेरुमाल ये पद है जो कुलशेखर राजा को इसलिए मिला क्योंकि भगवान के दुख में वो दुखी हो जाते थे, भगवान के सुख में सुखी हो जाते थे। जैसे सीता देवी का अपहरण हो गया तो भगवान राम बहुत दुखी हो गए, तो उसी प्रकार का दुख कुलशेखर के हृदय में होने लगा। इसलिए उनका नाम पेरुमाल, जो बहुत एक सम्मान की पदवी है ये। तो फिर अपने अंतिम दिनों में वो ऐसे स्थान में गए जो तिरुनेलवेली नाम के शहर के पास में है, जहाँ और एक आलवार नम्मालवार रहा करते थे। तो वहाँ वो थोड़े दिन के लिए गए और फिर वहाँ से गए ब्रह्मदेशम, जिस स्थान का नाम है मन्नर कोली, वो भी तिरुनेलवेली के पास में ही है। वहाँ पे वो थोड़े समय के लिए रहे। वहाँ पे भी एक मंदिर है और उस समय भी था, और वहाँ के विग्रह थे श्री राजगोपाल स्वामी। तो श्री राजगोपाल स्वामी ये भी भगवान कृष्ण या विष्णु की मूर्ति है, उनकी सेवा करते रहे और 67 साल की आयु में उन्होंने इसी स्थान में अपने प्राण त्याग दे दिए। और इस मंदिर का नाम आज है राजगोपाल स्वामी कुलशेखर पेरुमाल मंदिर। शायद जब हम कन्याकुमारी जाके वहाँ से अधिक दूर नहीं है तिरुवत्तर, परंतु समय नहीं होगा हमारे पास वहाँ भी जाने के लिए। आई थिंक इट विल बी टू फार, नो, तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो श्री रामानुजाचार्य ने कहा है कि जो व्यक्ति कुलशेखर कुलशेखर ऐसे कहेगा उसका जीवन धन्य हो जाता है। कुलशेखर कुलशेखर कुलशेखर। तो खैर ऐसे है महाराज कुलशेखर का गुण गौरव। उनके मुकुंद माला स्तोत्र ये बहुत प्रसिद्ध है। श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ के एक श्लोक को सदैव तो नहीं, अनेक बार ऐसे गीत रूप में गाते थे। तो मैं आपको बजा के सुनाना चाहता हूँ। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, ये श्लोक है, तो बजा सकते हैं। और वो स्क्रीन पे भी वो श्लोक केवल कृष्ण त्वदीय पद पंकज। Krishna, Krishna,
कृष्णापदीयपदतं कयपञ्जरान्तं भद्रैव विशतु मे मानसराजनम् प्राणप्रयासमये भगवावलोकितो अन्धावलोकनविधो स्मरणं कृतस्ते कृष्णात्वदीयपदं कयपञ्जरान्तं भद्रैव विशतु मे मानसराजहंसम् प्राणप्रयाण समये कपवातवित्तौ अन्धावलोकनविधौ स्मरणं कृतस्ते। ठीक है, इसका अनुवाद। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंडल के जाल में प्रवेश करने दें। मृत्यु के समय समय होना चाहिए। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। तो ये श्लोक अपने प्रवचनों में भी, अपने तात्पर्यों में भी श्रील प्रभुपाद ने कई बार कह दिया है। वैसे बहुत सारे प्रसिद्ध स्तोत्र आदि हैं भक्ति के क्षेत्र में। उनमें से ये मुकुंद माला स्तोत्र एक है। दक्षिण भारत में और विशेष करके श्री संप्रदाय के भक्तों में ये बहुत ही विख्यात, बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। और संगीतमय ढंग से बहुत सारे कलाकार भक्तों ने इसको गाया है। आप YouTube पर भी देख सकते हैं, तरह तरह के अनेक भक्तों ने अपने अपने कर्नाटक संगीत के लय के अनुसार गाया हुआ है। तो ऐसे कहा जाता है कि राजा कुलशेखर भगवान मुकुंद के लिए एक स्तोत्रों की माला बनाना चाहते थे। मुकुंदस्य माला, मुकुंद के लिए माला, स्तोत्र माला। तो मुकुंद माला स्तोत्र। श्रील प्रभुपाद जी ने 1950 के दशक में, ठीक कब मुझे पता नहीं, लेकिन उस दशक में किसी समय मुकुंद माला स्तोत्र का अनुवाद करना और तात्पर्य लिखना प्रारंभ किया। 6 श्लोकों का अनुवाद करके उनका तात्पर्य भी लिखा। बहुत सुंदर तात्पर्य है। और उसके बाद फिर उन्होंने इस कार्य को रोक दिया, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवत के पहले 3 स्कंद, जो श्रीमद् भागवत की का अनुवाद और उनके टीकाएं लिखनी थी, तात्पर्य लिखने थे। परंतु यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी आगे नहीं बढ़ पाए मुकुंद माला स्तोत्र के अनुवाद और तात्पर्य में, परंतु हम ये जान सकते हैं कि उनके मन में स्पष्ट इच्छा थी कि ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ किया था ये कार्य। और इतना ही नहीं, जो उस समय पहले 3 स्कंध जब प्रकाशित हुए श्रीमद् भागवतम के, तो उसके पहले एक श्रृंखला है जिसमें ये बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो उनमें मुकुंद माला स्तोत्र का नाम भी है। तो फिर बाद में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इन्होंने फिर श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज और श्रीमान गोपी पराण धन प्रभु, इनको नियुक्त किया कि आगे जितने भी बचे हुए श्लोक हैं उनका अनुवाद करके फिर तात्पर्य आदि लिखना। तो फिर लगभग भारत में 1992 में ये निकला। जब सबसे पहले मैंने खरीदा था, अभी ये किताब है अभी तक मेरे पास। ये सारे पन्ने निकल चुके हैं, परंतु बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप में से मैं बताऊंगा कि आप अवश्य इस ग्रंथ को पढ़िए।
श्लोकों का पठन करना थोड़ा कठिन है क्योंकि इनके छंद जो हैं थोड़े लंबे हैं और अलग अलग छंद हैं। हमने 10 श्लोक चुने हैं और 10 श्लोकों का पठन हम करेंगे, एक ही धुन में करेंगे, यद्यपि छंद इनके अलग अलग हैं, फिर भी हम करेंगे। वैसे इन प्रार्थनाओं में, इस स्तोत्र में महाराज कुलशेखर अपने भक्तिपूर्ण हृदय के साक्षात्कारों को व्यक्त करते हैं। कैसे उनकी भावनाएं हैं, क्या उनके विचार हैं, या क्या करना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा, इन स्तोत्र के द्वारा हम पाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख करते हैं तो स्तव पाठ ये एक अंग है, विज्ञप्ति ये दूसरा अंग है। विज्ञप्ति का अर्थ है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर अपनी निजी प्रार्थना करते हैं। स्तव पाठ अर्थात जब महान भक्तों ने रचे हुए जो स्तोत्र स्तव आदि होते हैं उनको जब हम दोहराते हैं तो ये है स्तव पाठ। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में कि बहुत सारे ऐसे सैकड़ों स्तोत्र हैं, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, और हमें इनमें से कोई एक या एक से अधिक चुनना चाहिए हमारे दैनिक पठन के लिए। नरसिंह पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के श्री विग्रह के सामने आकर ऐसे स्तव पाठ या स्तोत्र पाठ करता है, तुरंत अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो मुकुंद माला स्तोत्र ऐसे ही एक प्रार्थना है। तो आइए अभी हम 10, यद्यपि 53 श्लोक हैं मुकुंद माला स्तोत्र के, परंतु मैंने 10 श्लोक चुने हैं। आप गोविंदम आदि पुरुषम प्रार्थनाएं जानते हैं, तो सरल बनाने के लिए उसी धुन में हम इन श्लोकों को गाएंगे। याद रखिए कि सारे श्लोकों के छंद एक जैसे नहीं हैं, कोई लंबे कोई कम है, अक्षरों की संख्या एक जैसी नहीं है, परंतु चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक ही धुन का प्रयोग करने का प्रयास हम कर रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम वो ही धुन, ठीक है। सो यस, बिगिनिंग। आप सबको दिखाई दे रहा है? और जिनको नहीं दिखाई दे रहा है तो आजकल फ़ोन तो है ही, तो आप फ़ोन में खोल के आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप में भी ये श्लोक वहाँ पे पोस्ट किया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। श्री मुकुंद माला स्तोत्र। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठनको विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना पद यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव पद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अंधस्य मे हृत विवेक महाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रिय नामधेयैः मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् इदं शरीरं परिणामपेशलम् पतत्यवश्यं शतिसन्धिजर्जरम् किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब
आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचः कुहकः पठन्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मुकुंद माला स्तोत्र की जय। और संक्षेप में we have 5 minutes for the तो अनुवाद पढ़ेंगे इन श्लोकों का एक एक करके। पहले श्लोक लिखा ना, फिर इस श्लोक में मैं संक्षेप में इनका अनुवाद दूंगा। ठीक है, अनुवाद ही पढ़ लेता हूँ। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, ये पहला श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे मेरे स्वामी मुकुंद, कृपा करके आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बनने दीजिए, जिससे मैं आपको इस तरह संबोधित कर सकूं। श्री वल्लभ जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, वरद जो वर देने वाले हैं, दया पर जो अहेतुक रूप से दयालु हैं, भक्त प्रिय जो अपने भक्तों को अति प्रिय हैं, भव लुंठन कोविद जो जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने में दक्ष है, नाथ परमेश्वर जगन निवास ब्रह्मांड के आश्रय तथा नागशयन नागशैया पर लेटने वाले। तो क्या प्रार्थना है महाराज कुलशेखर की? कृपा करके आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बना दीजिए। तो ऐसे कृपा मुझ पर करें कि निरंतर मैं आपके नामों का कीर्तन कर सकूं। दूसरा श्लोक, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का पठन करते थे। कब करते थे? रथ यात्रा के समय। ये श्लोक जयतु जयति जयतु जयतु देवकी नंदनोयम। और एक श्लोक साथ में करते थे, जयति जन निवासो देव। कौन सा है? जयति जयति जन निवासो। हाँ, तो वो श्लोक भी बोलते थे। और साथ साथ शायद वो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, वो श्लोक भी बोलते थे। तो कम से कम इन 3 श्लोकों का उल्लेख तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। साथ साथ यह कौमार हरह, वो और एक श्लोक था। इन 4 श्लोकों का उल्लेख कविराज गोस्वामी ने किया है, उनमें से एक ये है। तो महाप्रभु इसको गाते थे, जयतु जयतु, जय जयकार हो। इसका अनुवाद है, श्रीमती देवकी देवी के पुत्र के रूप में विख्यात पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। वृष्णि वंश के उज्जवल प्रकाश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। उन भगवान की जय हो जिनके कोमल शरीर का रंग नवीन बादल के श्यामल वर्ण जैसा हो। उन भगवान मुकुंद की जय हो जो पृथ्वी के भार को हटाने वाले हैं। तीसरा श्लोक, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे। अनुवाद, हे भगवान मुकुंद, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ और आपसे आदर पूर्वक याचना करता हूँ कि आप मेरी इस एक इच्छा को पूरा करें कि मैं अपने प्रत्येक भावी जन्म में
आपके चरण कमलों का सदा ही स्मरण करता रहूं और उन्हें कभी न भूलूं। फिर 7वां श्लोक, चिंतयामि हरिम एव संततम। मैं सदैव भगवान हरि का चिंतन करता हूँ, जिनके कमल समान प्रसन्न मुखमंडल में मृदु मुस्कान बनी रहती है। यद्यपि वे नंद गोप के पुत्र हैं, वे परम पूर्ण सत्य भी हैं, जो नारद जैसे महान मुनियों द्वारा पूजित हैं। फिर श्लोक 21, लंबा श्लोक है लेकिन इसके अर्थ बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने इस श्लोक को चुना। भगवान श्री नारायण की जय हो। उनके चरण कमलों के स्मरण के बिना शास्त्रों का पाठ यूं ही अरण्य रोदन जैसा है। वेदों द्वारा आदिष्ट कठिन व्रतों का नियमित रूप से पालन करना शरीर का मोटापा करने की विधि के अलावा और कुछ नहीं। निर्दिष्ट पुण्य कर्मों को संपन्न करना मानो राख में आहुतियां डालना है और विभिन्न पवित्र स्थानों में स्नान करना गज स्नान के समान है। दूसरे शब्दों में राजा कुलशेखर कहते हैं, द्वंद्व अम्भोरुह, द्वंद्व अर्थात दो, अम्भोरुह अर्थात कमल, संस्मृतिम विजयते यत पाद द्वंद्व। तो जब तक भगवान नारायण के दो चरण कमलों के संस्मृतिम विजयते देवः, कि उनका स्मरण नित्य न हो, तो ये सारे जितने भी वैदिक कर्म का बताए गए हैं, आमनाय अभ्यसनानि, वेदों का पठन करना, ये ऐसा पठन करना मानो कि जंगल में जाके आप रो रहे हो। कौन सुनेगा आपका रोना? किसी ऐसे घने जंगल में जाइए आप जहाँ कोई नहीं है और जोर जोर से रोइए वहाँ पर, कौन सुनने आएगा आपको? वहाँ व्यर्थ है। उसी प्रकार से भगवान नारायण के स्मरण के बिना इस तरह वेदों का पठन करना व्यर्थ है। तो ऐसे अनेक बातें राजा कुलशेखर बताते हैं। फिर श्लोक 25, मत जन्मन फलमिदं मधु कैटभारे। हे मधु तथा कैटभ के शत्रु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे जीवन की पूर्णता तथा मुझ पर आप जो सर्वाधिक अभिलाषित दया दिखा सकते हैं, वह यही होगी कि आप मुझे अपने दास के दास के दास के दास के दास के दास का दास माने। ये श्लोक दिखाइए। हम महाप्रभु की बात सुन चुके हैं ना, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास। तो दास शब्द कितनी बार आता है वहां पर? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास, 3 बार। यहाँ कितनी बार है? 7 बार। देखिए, भृत्य, भृत्य अर्थात सेवक या दास, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। परिचारक अर्थात ये भी अर्थ वही है, सेवक। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य, 7 बार। ये कोई बस दिखावा नहीं है, ये राजा कुलशेखर के हृदय से बात आ रही है। ये केवल कोई एक प्रभाव डालने के लिए जो 7 बार दास कहा है, ऐसे नहीं है। ये राजा कुलशेखर अपने हृदय की बात व्यक्त कर रहे हैं। फिर 33, कृष्ण पदीय पद पंकज। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के दंडल के जाल में प्रवेश करने दें। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा,
तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। तो राजा कुलशेखर कह रहे हैं, अभी जब मेरा शरीर ठीक है मुझे ले जाइए, क्योंकि बुढ़ापा हो जाएगा, जब मृत्यु का समय आ जाएगा, कंठ में कफ वात पित्त जम जाएगा, उस समय पीड़ा इतनी होगी शरीर में, तो कैसे आपका हम स्मरण कर पाएंगे। फिर 36वां श्लोक, अंधस्य में हृत विवेक। हे प्रभु, मेरी इंद्रियों रूपी शक्तिशाली चोरों ने मेरी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति, मेरा विवेक चुराकर मुझे अंधा कर दिया है और मुझे मोह के गहरे अंधकूप में फेंक दिया है। हे देवादिदेव, अपना हाथ बढ़ाएं और इस दुष्ट आत्मा को बचा लें। और 37, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये भी चैतन्य चरितामृत में आता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको कहा है, लेकिन थोड़े शब्दों का आगे पीछे है श्लोक। इस शरीर का सौंदर्य क्षणिक है और बुढ़ापे में जब इसके सैकड़ों जोड़ ऐंठ जाएंगे तो इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो फिर मोहग्रस्त मूर्ख तो क्यों दवा मांग रहा है। बस कृष्णामृत को ग्रहण कर, जो अचूक उपचार है। किम औषधम पृच्छ से मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। कृष्ण रसायनम पियो। हे मूर्ख, क्या दवाई 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 लगे रहते हो। कृष्ण की दवाई ले लो, कृष्ण रसायनम पिब। 38वां, आश्चर्य में तत्। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात समाज में क्या है, कुलशेखर राजा बता रहे हैं। मानव समाज का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग न सुधरने पर इतने अड़े हुए हैं कि वे नारायण के नामों के जीवनदायी अमृत को छोड़कर अन्य सब कुछ बोलकर विषपान कर लेते हैं। श्री मुकुंद माला स्तोत्र की जय। श्रीमान कुलशेखर आलवार की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।